Hi viewers, welcome back. So today's chapter is chapter number 3 and working with list. We are studying Python crash course, and if you have not studied chapter number 1 and chapter number 2, I would recommend you to please study chapter number 1 and 2 before studying chapter number 3, that is in which we will study how to loop through an entire list using just a few lines of code. So before that, we have seen what is a list and how to order a list or how to sort out a list or how to dynamically delete, update or remove the items or elements from list. So here we will discuss loop with respect to list, that how to loop through an entire list without using without directly accessing each index of the loop. So let's start it. So we are moving towards the anaconda, and here I would write a loop. First of all, I would create a list. List is, for example, magician equals to Ali, Sana, and Daud. Okay. So how will I access each element of this list? By using a loop. A lot of loops are there. I would like to use for loop. For using for loop, I have written for. After for, I will use the variable name that can be any. I will use here mag. This can be any name of my choice. मैं अपनी मर्जी से कोई भी नाम यहाँ पर रख सकती हूँ. And then in is also a reserve word. And here I will write the list जिसमें से मैंने इंडेक्सेस को सारे इंडेक्सेस को एक्सेस करना है. उस लिस्ट का नाम है मैजिशियंस. इसके बाद इट विल बी टर्मिनेटेड विथ कॉलन. यहाँ पर आई हैव टू प्रिंट मैजिशियंस. प्लीज़ टेक केयर ऑफ इंडेंटेशन. इंडेंटेशन ये होती है कि जैसे यहाँ पर अगर सपोज मैंने कोई स्पेस नहीं दी तो इट मीन्स कि इनमें से कोई भी पार्ट किसी भी स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है. कोई भी स्टेटमेंट किसी और स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है. ठीक है. सो इफ़ आई राइट इंडेंट हेयर और a tab here और 4 spaces here, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये this print statement is the part of this for loop statement. Okay, so here this for loop will actually execute this print statement for a lot of times, not just single times but 3 times. ठीक है. So let's just run it. इसको मैंने रन किया और देखिए आप, उसने मुझे 3 वैल्यूज़ दिखाई. मतलब मैजिशियंस एक दफ़ा भी दिखाया, फिर दूसरी दफ़ा भी मैजिशियंस दिखाया और फिर तीसरी दफ़ा भी मुझे मैजिशियंस दिखाया. बट इफ़ आई डू इट लाइक दिस, अब क्या होगा? नाउ इट्स शोइंग मी एन एरर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक. यहाँ पर एरर आ गया है इंडेंटेड. दिस इज़ अ डिफरेंस ऑफ पाइथन विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दैट इट टेक्स इंडेंटेशन वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर इंडेंटेशन नहीं है आपकी प्रॉपरली, इट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव एन एरर हियर. सो ये था मैजिशियन से रिलेटेड. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट. इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ. इसमें हो क्या रहा है कि फर्स्ट टाइम ये फॉर मैग इन मैजिशियंस को प्रिंट करता है और मैग के अंदर ये अली को भी प्रिंट कर रहा है, फिर सना को भी प्रिंट कर रहा है और दाऊद को भी. ये पूरी पूरी रो को उठा रहा है. इट्स नॉट जस्ट टेकिंग अ सिंगल रो बट इट्स टेकिंग अ ह्यूज अ फुल रो. व्हाई? बिकॉज आई हैव मेंशन्ड हियर मैजिशियंस. अगर मैं यहाँ पर मैग स्पेसिफाई करूँगी, इट मीन्स ये फर्स्ट टाइम मुझे अली शो करेगा, देन इट विल शो सना and finally it will show Daud. Like it will take each element of this list one by one. If I write here magicians,
it means this will directly access all the values of magicians. Like magicians has this list Ali, Sana and Dawood. So first time it will be printed, again second time it will be printed, and then third time it will be printed. It has executed the same statement for three times. Why it has executed the same statement for three times? बिकॉज आई हैव यूज्ड मैग इन मैजिशियंस। और मैग की वैल्यू क्या बनती है? तीन बनती है, वन, दो, वन, टू एंड थ्री। ठीक है, वट इफ आई राइट मैग हियर, what will it do now? Now it will separately print out Ali, then in next row it will print out Sana, and then finally it will print out Dawood like this. Okay, so this is about the for loop. Now I will discuss a closer view of this for loop. Like what if I remove the indentations? What will it do? Like for example, I have removed this indentation. It will generate me an error. What if I have put two spaces, three spaces? It will give you an error until you complete four spaces. So it will tell you, yes, it is indented correctly. Now let's write another statement here inside the for loop. I'm going to write, hi Meg. In order to write some other statement here, I need to use plus because that is used for concatenation. And here I will write, that was a great trick. And I will execute it. So it is showing me that was a great trick. Ali, that was a great trick. Sana, that was a great trick. And Daud, that was a great trick. What if I write a statement that is next statement and that is out of this for loop, not inside this for loop, but out of that for loop? इसका मतलब ये हुआ कि तीन टाइम्स ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, इसके बाद फाइनली एक स्टेटमेंट प्रिंट होनी है, तो वो आप कैसे करोगे? ठीक है, फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट अनदर प्रिंट स्टेटमेंट एंड दैट शुड नॉट बी इंटेंडेड, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि वो फॉर लूप का पार्ट नहीं होगी, वो फाइनली एग्जीक्यूट होगी जब ये तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे. सो आई विल राइट हियर, थैंक यू एवरीवन फॉर योर मैजिक. थैंक यू everyone for your magic, right? So what if I execute it? It will show me these statements three times, क्योंकि ये वाला print statement is inside the for loop, so this print statement will execute for three times. और ये जो statement है, this is outside the for loop, यानी this is not the part of for loop, this is outside the for loop, so it will be executed only once. ठीक है, ये एक ही दफ़ा सिर्फ execute होगा. So what I have done here, I have written a statement that is not the part of for loop. So what if you are having some indentations error? How will you remove those indentation errors? You can simply remove them by just pressing four spaces. If a print statement or some other statement is the part of for loop, it means you have to mention that as indent spaces. What if you want to write inside a for loop inside another for loop? This is your task and you have to do it in exercise. Now I'm moving towards the next step in which you have to use numerical list. We are working on numerical list. Like here the list is string data, but now in next I will tell you how to use न्यूमेरिकल लिस्ट. यहाँ पर हम बनाते हैं न्यूमेरिकल लिस्ट और वो बनाने का सबसे आसान तरीका है, आई विल यूज़ फॉर, दैट इज़ अ रिजर्व वर्ड, देन दिस इज़ अ वेरिएबल नेम जो कि आपकी मर्ज़ी से कुछ भी हो सकता है. आई एम यूजिंग वैल्यू हियर एंड इन रेंज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस रेंज फंक्शन. हम शायद ऊपर कर चुके हैं. रेंज फंक्शन में होता ये है कि आपने जो भी वैल्यू प्रिंट करनी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लगती है. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने रेंज दी है 1 से लेकर 6 तक, तो ऑटोमेटिकली 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5. सो आई डोंट हैव टू राइट एक्सप्लिसिटली ऑल दीज वैल्यूज़, आई हैव जस्ट रिटन द रेंज. रेंज एक ऐसा फंक्शन है जो कि दो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होती है और सेकेंड वैल्यू इज़ द एंडिंग वैल्यू. ठीक है, इसके अंदर मैंने करना ये है कि हर टाइम आई हैव टू यूज़ print statement
जिसके अंदर मैं हर दफ़ा वैल्यू प्रिंट करूँगी। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आई विल रन इट आउट। सो सॉरी देयर इज़ सम एरर बिकॉज़ आई हैव मिस्ड दिस colon. So just running it again. So it's fine now. Okay. यहाँ पर मैंने क्या किया है, आई हैव टोल्ड यू टू यूज़ अ रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन के अंदर आप स्टार्टिंग लिमिट देते हो और एंडिंग लिमिट देते हो, वो ऑटोमेटिकली एक लिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पे काम करते हो। लेकिन आप रेंज फंक्शन को यूज़ करते हुए एक लिस्ट ऑफ नंबर्स भी बना सकते हो, यानी रेंज फंक्शन को यूज़ करते हुए आप एक लिस्ट प्रॉपर्ली बना सकते हैं जो कि आपको इस फॉर्म में शो होगी, जैसे ये आपको शो हुई है। बिल्कुल इसी तरह से आप रेंज फंक्शन को यूज़ करते हुए एक लिस्ट जनरेट कर सकते हो। तो देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, लिस्ट, उसका टाइटल ही लिस्ट होगा, ठीक है। वो एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है जिसको मैं पास कर रही हूँ रेंज, कि वो कौन सी रेंज लेगा। और रेंज में मैं पास करती हूँ 1, 8, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक इसने रेंज ली है और फिर मैं इनको प्रिंट करना चाह रही हूँ। तो ये मुझे आउटपुट में बिल्कुल वैसा ही बताएगा जैसा कि ऑलरेडी इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देती हूँ, नंबर इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे मैं नंबर को प्रिंट करती हूँ, ठीक है। तो ये मुझे बिल्कुल वैसा ही आउटपुट देगा जैसा कि लिस्ट का होता है, जैसे इस फॉर्मेट में। तो आप रन करें तो देख लें, आपको उसने इसी फॉर्मेट में आपको दे दिया है इनपुट, ठीक है। सो इट्स सिंपल, इट्स क्वाइट सिंपल। अच्छा, अब एक छोटी सी ट्रिकी एग्जांपल करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस कर सकते हैं। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस आप कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं कि हम ये भी देख लेते हैं कि मिन और मैक्स फंक्शन क्या करता है। यहीं पर हम उसको भी कर लेते हैं। मिन जो है, अगर मैं यूज़ करूँ मिन नंबर, तो ये मुझे बता देगा कि मिनिमम नंबर यहाँ पर क्या है। इसने मुझे बताया कि मिनिमम नंबर क्या है, 1। इसी तरह से मैं यहाँ पर मैक्स यूज़ करती हूँ कि इसी नंबर्स में से 1 से 7 तक के जो नंबर्स हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो इट विल शो मी 7। यस, देख लें, अब उसने मुझे 7 शो कराया है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपने शायद नोटिस की होगी कि जब हम रेंज पास करते हैं 1 टू 8, तो ये आखिरी जो वैल्यू है वो उससे एक लेस होती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है हमेशा। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, उसमें क्या करते हैं हम, एक सिंपल सा एक एरे लेते हैं हुज टाइटल इज़, या नेम, क्या एरे नहीं सॉरी लिस्ट लेते हैं जिसका नाम है स्क्वायर, और इसको मैं एम्प्टी छोड़ रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ एम्प्टी। आई विल पॉपुलेट इट डायनेमिकली बाय यूजिंग फॉर लूप। मैं फॉर लूप के थ्रू इसको पॉपुलेट करूँगी। यहाँ पर मैं एक फॉर लूप बनाती हूँ फॉर वैल्यू, ये चलो सिंपली आप वी भी ले सकते हैं, इन फॉर वैल्यू इन range, I am going to give a range. Range के लिए you have to use this bracket 1 comma 11. I am going to actually print out squares. इतना तो आपको square को देख के समझ भी आ गया होगा। तो square मैं कैसे print करूँगी, simply square के अंदर मैं एक value store करती हूँ, हर दफ़ा ये value change होगी। square equal to, square हम किसी भी चीज़ का कैसे लेते हैं, डबल स्टैटिक यूज़ करते हुए, वैल्यू स्टैटिक स्टैटिक, चलें 2 ले लिया मैंने, ठीक है। स्क्वायर उसका 2 होता है, क्यूब उसका 3 होता है, किसी भी वैल्यू का। इसके बाद हर दफ़ा मैं स्क्वायर के अंदर वैल्यू तो स्टोर करती जा रही हूँ कि वैल्यू का स्क्वायर हर दफ़ा हो गया, और वो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। लेकिन स्टोर हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। मुझे वो वैल्यू अपडेट नहीं करनी बल्कि उसके अंदर इंसर्ट करनी है। तो हाउ कैन आई डू दैट, आई विल यूज़ स्क्वायर डॉट अपेंड। ये जो स्क्वायर एरे है इसमें मैं हर दफ़ा अपेंड करूँगी क्या चीज़, स्क्वायर। सो आई हैव डन इट राइट। और फाइनली मैं एंड पे प्रिंट कर दूँगी, जो कि लास्ट में प्रिंट होगा, और जो कि इसका पार्ट भी नहीं है फॉर लूप का, दैट इज़ अ सेपरेट स्टेटमेंट जिसमें मैं कंप्लीट स्क्वायर लिस्ट प्रिंट कर दूँगी, ठीक है। स्क्वायर्स, यहाँ पर मैंने इसको स्क्वायर रखा है, तो ये जो है ये स्क्वायर्स हो जाएगा। स्क्वायर्स का मैंने एक एरे बनाया है, और वो हर वक्त स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है, और मैं उसको स्क्वायर्स के साथ अपेंड करती जा रही हूँ, और फाइनली आई एम गोइंग टू प्रिंट आउट दैट। यहाँ पर इसको रन करते हैं,
और देख लें अब इसने मुझे 1 से लेकर 10 तक हर वैल्यू का स्क्वायर दिया है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 एंड ऑल द वे अप टू 100। ठीक है? तो यहाँ से आगे हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं दैट इज़ अ बिट मोर इम्पोर्टेंट एंड हुज टाइटल इज़ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस में क्या होता है कि आप करते ये हैं जब भी अम, कोई आपने फॉर लूप के अंदर, जैसे यहाँ पर हमने ये स्क्वायर कैलकुलेट किया है, ये हमने एक फॉर लूप के अंदर जाके एक सेपरेट स्टेटमेंट लिखी है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस आर नॉट ऑलवेज एक्चुअली यूज्ड, but they can be used sometimes, so you may know about the concept of it. It combines a for loop and the creation of new elements into one line. लाइक फॉर लूप भी उसी लाइन में होगी और उसी लाइन में ये जो हम स्टेटमेंट जनरेट करें ये भी उसी लाइन में होगी। अब देखना ये है कि ये कैसे होगा। इट इज़ वेरी सिंपल, लेकिन देखने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो पहले मैं क्या करूँगी, एक स्क्वायर कैलकुलेट कर रही हूँ, जैसे उसी तरह से स्क्वायर कैलकुलेट करूँगी और उसी लाइन में फिर मैं फॉर लूप लिखूँगी। तो स्क्वायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इज़ सिंपल, वैल्यू स्टैरिक टू, इसी तरह से स्क्वायर कैलकुलेट होता है। इसके बाद मैं मेंशन कर दूँगी फॉर लूप, और फॉर लूप आपको पता है आप कैसे मेंशन करते हो, फॉर वैल्यू इन रेंज 1, 11। अच्छा, आई एम गोइंग टू enclose दिस इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड द रीज़न बिहाइंड इज़ क्योंकि ये स्क्वायर इज़ इटसेल्फ अ array. Since squares is an array, so I have enclosed that in square bracket, and now I'm going to print it out. If I run it, okay, it has shown me the square of final value. हर एक वैल्यू का इसने मुझे स्क्वायर नहीं दिखाया, और इसने मुझे हर एक वैल्यू का स्क्वायर शायद इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने प्रिंट ही फाइनल वैल्यू का स्क्वायर किया है। देखिए, this print statement is not a part of this for loop. Since it is not the part of this for loop, it means it is going to show me the final squared value. ठीक है? So यहाँ तक clear है? This was how we comprehend a list. Next is how do we slice a list. All of this is available in this Word document. You can view it. I will also paste it in comment section or in description box. So just check how to slice. I'm going to make a list whose title is players equals to. I'm going to store a lot of values in it. For example, Charles. We can store our local names. Ali, Aksa. All these are the players. हम सपोज करते हैं कि ये लूडो प्लेयर्स हैं, एंड साइमा. ओके, आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स. अब इन प्लेयर्स को मैं सिर्फ फर्स्ट टू प्लेयर्स देखना चाह रही हूँ. ठीक है, तो हाउ विल आई सी द ओनली फर्स्ट टू प्लेयर्स. प्रिंट करना पड़ेगा मुझे प्लेयर्स को, लेकिन मुझे प्लेयर्स को पास करते वक्त सिर्फ रेंज देनी है कि मैं किससे किसको देखना चाह रही हूँ. मैं ज़ीरो से लेकर, सपोज मैं ज़ीरो से लेकर 2 तक देखना चाह रही हूँ, तो फिर मुझे क्या नज़र आएगा, थर्ड वैल्यू फिर मुझे नज़र नहीं आएगी और ना ही फोर्थ. 0 से 2 तक मैंने सिलेक्ट किया है, तो ये 0 से 2 तक मुझे क्या दिखाएगा, सिर्फ वो वैल्यू जो कि ये 1 पे थी चार्ल्स, और वो वैल्यू जो कि 2 पर थी. चूँकि रेंज में आपको पता है लास्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली स्किप हो जाती है. अगर मैं इसको 3 करूँगी तो ये 3 तक मुझे दिखा देगा, राइट. अगर मैं इसको 4 करूँगी तो मुझे ये सारी वैल्यूज़ दिखा देगा, राइट. और अगर मैं इसको 5 करूँगी तो थिंग इज़ तब क्या दिखाएगा, तब भी उसके पास तो 4 वैल्यूज़ हैं, सो ये मुझे 4 वैल्यूज़ ही दिखाएगा. सो वी कॉल दिस स्लाइसिंग, कि हमने बहुत बड़ी लिस्ट है उसमें से जितनी वैल्यूज़ हम देखना चाह रहे हैं हम सिर्फ उतनी वैल्यूज़ देखेंगे. इसमें एक दो नाम मैं और भी डाल देती हूँ, नाइमा और अबीहा. ठीक है, तो हुआ ये कि मैंने इसमें से जितना मैं देखना चाह रही थी मैंने सिर्फ वो रेंज पास कर दी है, दैट इज़ आई वांट टू ओनली सी द फर्स्ट टू एलिमेंट्स, सो द आउटपुट वुड बी 0
एंड 1 सिर्फ फर्स्ट 2 वैल्यूज़ आ जाएँगी, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। सो वी कॉल इट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्ट की वैल्यू दो, आप अपनी मर्ज़ी से 1 से लेके 3 तक भी वैल्यू पास कर सकते हो, यानी रेंज कोई भी हो सकती है। ये उसी रेंज की वैल्यू आपको उठा के देंगे, अली और अक्सा, क्योंकि फर्स्ट लोकेशन पे कौन है? अली है। 0 पे चार्ल्स था और फर्स्ट पे अली है, तो फर्स्ट से लेके थर्ड तक ये आपको शो कर रहा है। थर्ड जो है वो स्किप हो जाती है, हमेशा रेंज में जो लास्ट वैल्यू आती है उससे एक कम ये आपको दिखाता है, ठीक है? इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट इंडेक्स ना स्पेसिफ़ाई करें, आप सिर्फ लास्ट इंडेक्स स्पेसिफ़ाई करें, तो तब क्या होगा? जैसे मैं ये 1 को इधर हटा रही हूँ और मैं सिर्फ 3 दिखाती हूँ, तो ये फिर उसका स्टार्ट वो जहाँ से भी हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन लास्ट इंडेक्स वो आपके वाले को पिक करेगा, ठीक है? लाइक यहाँ पर इसने 3 इसको पिक कर लिया है। या मुझे बता रहा है कि 3 वैल्यूज़ बदल गए। इसका ये मकसद है कि 3 वैल्यूज़ आपको ये शो करेगा, ठीक है? यहाँ तक इज़ दैट क्लियर? एंड व्हाट इफ कि मैं अगर लास्ट वाले को स्किप करने के बजाय फर्स्ट को स्किप करने के बजाय लास्ट रेंज वाले को स्किप कर दूँ, तो फिर ये मुझे 2 से ऑनवर्ड्स दिखाएगा। 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसने 2 से ऑनवर्ड्स मुझे शो कर दिया, ठीक है? इज़ दैट क्लियर नाउ? अच्छा, व्हाट इफ आई पास अ नेगेटिव इंडेक्स? यहाँ पर क्या मैं नेगेटिव इंडेक्स पास कर सकती हूँ? What does it mean if you are using a negative index? -2. It means last two players. ठीक है? Last two players नाइमा और अबिहा हैं. What if I use -4? So it will show me the last four players. Similarly, what if I write -1? It is going me इट इज़ गोइंग टू शो द लास्ट प्लेयर। लास्ट जब भी आप माइनस में वैल्यू देते हो तो वो इंडेक्स लास्ट से हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ तक तो हमने देख लिया है कि हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं। क्या हम स्लाइसिंग करते हुए कैन बी यूज़ अ लूप? यस ऑफ कोर्स वी कैन यूज़ अ लूप। यहाँ पर हम स्लाइसिंग करते हैं बाय यूजिंग लूप, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, इसी को हम नेक्स्ट पार्ट में और इसको यूज़ करते हैं स्लाइसिंग फॉर लूप के थ्रू। तो फॉर मैंने मेंशन किया, फॉर के साथ यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का मेरा कोई भी वेरिएबल होगा इन प्लेयर्स, राइट? प्लेयर्स के अंदर स्लाइसिंग मुझे करनी है और स्लाइसिंग मैं कैसे कर रही हूँ? कॉलन 3, यानी फर्स्ट रेंज मैंने स्किप कर दी और सेकंड रेंज मैंने पास की है। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं हर दफ़ा प्रिंट करना चाह रही हूँ कि जो भी प्लेयर मेरे पास आए उनका टाइटल, तो वो मैं सिंपली प्लेयर डॉट टाइटल करके भी प्रिंट कर सकती हूँ। येस और नो? येस आई कैन। डॉट टाइटल, ठीक है? तो इसने मुझे हर दफ़ा उन प्लेयर्स का टाइटल दे दिया है। जैसे थर्ड मैंने फर्स्ट रेंज नहीं बताई थी, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? स्टार्ट वहीं से होगा 0th लोकेशन से। चार्ल्स, अली और अक्सर इसने 3 वैल्यूज़ मुझे रिटर्न कर दिए और हर एक का टाइटल दिया है। हम फिर एक लिस्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। एंड हाउ वी विल डू दैट? हाउ वी विल कॉपी अ लिस्ट? इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। मैं यहाँ पर ये प्लेयर्स के का मैंने बनाया है, चलिए मैं कोई और बनाती हूँ। फूड्स, फूड्स की है एक लिस्ट और उसको मैं कॉलन में वैल्यूज़ असाइन करती हूँ। पिज़्ज़ा, फलाफल, राइट, केक, 3 वैल्यूज़ हैं इसमें और मैं इन्हीं वैल्यूज़ को किसी और के अंदर, किसी और लिस्ट के अंदर कॉपी करूँगी और वो मैं बनाती हूँ फैमिली फूड, ठीक है? फैमिली फूड इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने अपना बनाया है लिस्ट, उसको मैं कॉपी कर रही हूँ, उस टाइटल इज़ फूड्स, उसके साथ स्लाइसिंग करते हुए मैं रेंज कोई भी पास नहीं करी और अब मैं दोनों लिस्ट को प्रिंट करती हूँ, फूड्स लिस्ट को और फैमिली फूड को, कि ये मुझे क्या शो करेगा। जो ये फूड्स है एक्चुअली उसके अंदर तो यही रहेगा, लेकिन फैमिली फूड को भी मैंने फूड्स के इक्वल असाइन कर दिया है, तो इट मीन्स कि दोनों का जो आउटपुट है वो सेम होना चाहिए। एक्चुअली आई हैव कॉपीड दिस फूड्स इनसाइड फैमिली फूड, ठीक है? Is that clear? Actually, I have copied this food inside family food, ठीक है? If I print, मैं दोनों को अगर प्रिंट करूँ तो दोनों का आउटपुट जो है वो सेम होगा।
यहाँ पर मैं प्रिंट कर रही हूँ किसको, फूड्स को, और फिर मैं प्रिंट कर रही हूँ फैमिली फूड को, राइट। आई एम गोइंग टू रन इट आउट। देख लें दोनों का आउटपुट सेम है बिकॉज आई हैव कॉपीड दिस फूड्स inside family food. What if I remove these range? This is going to give me an error because it is showing me invalid syntax. Again, you can also check it out. This is possible. If you are mentioning this square bracket, it means you have to specify the full range. Is that clear now? Last topic is tuples. Tuples कब use होते हैं? Python refers to values that cannot change or known as tuples. You can change this list, but you cannot change a tuple. ठीक है, ट्यूपल को आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा ट्यूपल बनाती हूँ। ट्यूपल का टाइटल है डायमेंशंस, और इसको मैं देती हूँ वैल्यूज़, दो ही वैल्यूज़ देती हूँ, दैट आर 10, 20. For example, these dimensions are the dimensions of a rectangle, और आपको पता है rectangle की dimensions change नहीं होती. So instead of creating a list, I can create a tuple because tuple does not allow its value to be changed. ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, प्रिंट करना चाहती हूँ ट्यूपल को, और मैं प्रिंट में सिर्फ सिंपली मेंशन करूँगी देम, तो ये मुझे शो कर देना चाहिए। इसने मुझे शो कर दिया दैट इज़ 10 and 20. व्हाट इफ आई what if I want to change dimension value that is at 0th लोकेशन, वो वैल्यू जो कि 0th लोकेशन पे है उसको मैं चेंज करके उसको मैं कोई और वैल्यू असाइन कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं उसको 25 दे रही हूँ, तो फिर मैं, क्या ये पॉसिबल है कि मैं 0th लोकेशन की वैल्यू को चेंज कर दूँ? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि जो ट्यूपल है इट डज नॉट अलाउ यू टू चेंज द वैल्यूज़, सो आई कैन नॉट डू दिस वैल्यू चेंज, आई कैन नॉट चेंज दिस वैल्यू। जैसे ही मैंने उसको चेंज करने की कोशिश की, tuple object does not support item assignment. Item assignment इसमें नहीं है. It means if I am going to change the value of tuple, it is going to give me an error. So I cannot change the value of tuple. इसी तरह loop through भी आप कर सकते हो tuple को. So this was all about today's lecture. I have written and explained everything in this document. I will paste this document in description box. I have mentioned slicing. I have mentioned copying a list. I have also mentioned a small exercise. What is this exercise? I'll explain that to you and you have to do it. This is very simple. You have to create a number that is raised to the third power, that is known as cube. For example, the cube of 2 is written as this way in Python. Make a list of first 10 cubes, that is the cube of each integer from 1 to 10, and use a for loop to print out the value of each cube. Use a list comprehension method to generate a list of first 10 cubes. This is very simple. I have already done the square method. You just have to do the cube method. I think I am missing tuples here in this description box, but you can refer to my video, and if there is any question you can ask that question. And if you like this video and if it is understandable for you, please subscribe my channel. And that's all about the today's lecture. So if you face any difficulty or any question or any query, please do ask